فرمائش کرو. یہاں بہت سے علماء کرام طلباء کرام تشریف رکھتے ہیں. ایک میں قرآن مقدس میں نماز کی ادائیگی کے لیے ادا کا لفظ نہیں بلکہ اقامت کا لفظ بولا گیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اقامت الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ دائمی طور پر مسلسل لگاتار نماز کو ادا کیا جائے, اس پر مواظبت اور ہمیشگی برتی جائے. اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو سرسری طور پر نہیں بلکہ اس کے ظاہری اور باطنی تمام آداب کے ساتھ ادا کرنا, یہ اقامت الصلاۃ ہے. میں اسی اقامت الصلاۃ کے اسی معنی کو لے کر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو میری اپنی سمجھ میں نہایت ضروری ہیں اور ان کے جتنے حضرات تشریف رکھتے ہیں عوام و خواص میں سے میرا خیال یہ ہے تقریباً سارے لوگ ذکر و فکر سے جڑے ہوئے ہیں, اس لیے اس چیز کی اہمیت اور ضرورت ہمارے اور آپ کے لیے اور زیادہ واضح ہے. اولاً تو یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایک غلط نظریہ اور فاسد گمان یہ بھی رہتا ہے, میں اپنے آپ کے طور پر سمجھ رہا ہوں اور اکثر لوگوں کے حالات دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ہر معاملے میں ہمیشہ کامل سمجھتا ہے. یہ بہت بڑی کوتاہی اور کمی ہے, بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب کامل سمجھ لیتا ہے تو اسے مزید حصول کا جذبہ اور شوق بالکل اس کے اندر ختم ہوتا ہے. وہ پھر اس کے بعد میں کسی بات پہ غور نہیں کرتا ہے, وہ اپنے احوال و قواعد پر اپنے حالات پر بھی نگاہ نہیں ڈالتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس معاملے میں ہم بالکل صحیح ہیں. یہ نظریہ جب تک رہے گا تو یہ روحانیت اور طریقت سے بالکل منافی نظریہ. حضور امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندے کو ہمیشہ اپنے آپ کو ناقص سمجھنا چاہیے, کمتر سمجھنا چاہیے اور کمال کے لیے ہمیشہ توجہ اور محنت کرتے رہنا چاہیے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے. مثلا ہم روحانیت کی طلب میں ہیں, ذکر فکر کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, لیکن یہ الحمدللہ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک طریقہ اور مبارک سلسلہ ہے کہ جس میں شریعت پر عمل ابتدا میں بھی ضروری ہے, توسط میں بھی ضروری ہے اور انتہا میں بھی ضروری ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک شریعت سے سرے منہ انحراف بھی بوال جان اور ہلاکت سے دونوں جہان. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم ذکر کے متلاشی ہیں, روحانیت کے طلبگار ہیں, تو سب سے پہلے شریعت پر عمل کو پختہ کرنا پڑے گا, تب کہیں جا کے ہمیں سلسلے کی صحیح برکتیں نصیب. ورنہ یہ ذات, یہ مقدس ہستی جو ہمارے سامنے لیٹی ہوئی ہے مجدد الفسانی کے وہ جلوے رکھتی ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ان کی صحبت اٹھا کے اگر ہمارے اور آپ کے لطائف ذاکر بھی ہو گئے تو یہ بہت معمولی چیز ہے, یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. ان کی بارگاہ میں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو وہ کمالات حاصل ہوں, وہ کمالات حاصل ہوں کہ دنیا دیکھے تو جان جائے کہ بحر العرفان کو اللہ نے کتنا بڑا. لیکن اس کے حصول کے لیے کچھ شرائط ہیں, کچھ مبادی ہیں, کچھ مقدمات ہیں. بغیر ان مبادی اور مقدمات کو اپنائے ہوئے ہم اور آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ان اعمال میں سب سے اہم, سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے ارقا اور سب سے زیادہ برکتوں کا حامل عمل جو ہے وہ نماز. آپ اتنا سمجھ لیں, سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو, کچھ عام صوفیوں کو, ناتمام صوفیوں کو فرماتے ہیں نماز کی حقیقت اور اس کا مزہ ہی نہیں ملا. اگر انہیں نماز کی حقیقت کا
जाता और उसका सही वक्त मिल जाता तो न कोई न मौत सुकून के पीछे पड़ता, न कोई वजदो तवाजुद को हासिल करता, न कोई नफ्स और मूसीकी का दिन ज़्यादा होता, बल्कि रात दिन नमाज में अपना वक्त बसर करके खुदा की बरकतों से माला माल फरमाते हैं। नमाज ज़ाहिरी और बातिनी आदाब के साथ इतनी बरकतें रखती है, इतनी बरकतें रखती है जो उन बरकतों का कोई अंदाजा नहीं है। मैं बात को ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, बड़ी इख्तिसार के साथ मैं चंद ज़रूरी आदाब, बातिनी आदाब तो हमारी और आपकी कैफियतें, ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिन्हें हम नहीं देख सकते, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं देख सकता। जो हमारा खुशबू है, हमारा हुजू है, हमारे दिलों की जो कैफियत है, हमारे ज़हन दिमाग का जो इत्तेफाक और तवज्जो है, ये तो सिर्फ हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। लेकिन जाहिर को दूसरे भी देखते हैं और जाहिर को देख के ही दूसरे लोगों को हमारे बारे में राय कायम करने का मौका मिलता है। लिहाजा इस सिलसिले में मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे छोटे बच्चों, मैं सबसे अर्ज कर रहा हूँ, इस सिलसिले में हमें और आपको निहायत जिम्मेदारी के साथ और अक्ल शऊर के साथ में अपने सबक को फिर दोहराने की जरूरत है। हम बचपन में जैसे नमाजें पढ़ने की हमारी आदत पड़ गई कि हम बुढ़ापे तक पहुँच जाते हैं, वैसे ही नमाज पढ़ते। मैं कई लोगों को मैं देखता हूँ जो काफ़ी उम्रदराज हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अच्छी तरह से कि बचपन में इन्होंने जिस तरह से नमाज सीख ली, अगर वो रुकू में थोड़ा झुकते हैं तो आज भी वो थोड़ा ही झुकते, क्योंकि उन्होंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि हम रुकू जो कर रहे हैं, जबकि वो किताबों का इल्म भी रखते हैं, मसाइल की सही तफसील भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद अपने अमल की निगरानी और मुहासबा उनके अंदर नहीं पैदा हुआ, इसलिए उनके अंदर ये कमी आज भी होगी। ये मिसाल मैं दे रहा हूँ, इस तरह की बहुत सी कमियां हमारे और आपके अंदर हैं जो हम नमाज अदा करने के सिलसिले में बरतते हैं। और आप यकीन जाने, अगर नमाज में कोताही होगी तो कभी भी हमें सिलसिले मुजद्दिदिया की जो सही बरकतें हैं वो कभी हासिल नहीं होती। सिलसिले मुजद्दिदिया की क्या बरकतें हैं, ये तो तसव्वुफ का सही इल्म रखने वाले और हुजूर बहरुल रिज़वान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की किताबों का सही मुताला करके उनसे मारिफ अफ्ज़ करने वाले जान सकते हैं कि सिलसिले मुजद्दिदिया की बरकतें कितनी अजीम। उन्हें आम आदमी, आम इल्म वाला समझ भी नहीं सकता है। सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हमारे यहाँ चूँकि इत्तिबाए सुन्नत में कमाल है, इसलिए लोग समझते हैं कि हमारे सिलसिले में मुजाहिदा फरमाते, लेकिन उनकी निगाह की ये कोताही है। वो मुजाहिदों को, वो चिल्लों को, वो कई कई दिन लगातार रोजे रखने को बहुत कमाल समझते हैं। फरमाते कमाल ये नहीं है, कमाल तो ये है कि बहुत तेज की भूख लगी हो, शिद्दत की भूख हो और उस वक्त में लजीज खाना सामने हाजिर हो और इसके बावजूद बंदा सुन्नत पर अमल करते हुए तिहाई पेट अगर खाना खा रहा है तो ये मुजाहिदा भूखे रह के रोजा रखने से भी ज्यादा। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं जहाँ एक अजब बेकैफी, बेचूनी है। फरमाते हैं बेचूनी को बेचून से निस्बत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बेचून है, बेचून है, वो बेकैफ है, बेमिसल है, लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी तरह कोई चीज नहीं है। फरमाते लिहाजा उसका जो जाती फैज है, जिसे फैज़े जात कहते हैं, वो भी बेचून और बेकैफ होता है, इसलिए हर एक उसकी बरकतों और अज़मतों का अंदाजा नहीं कर सकता। तो मुख्तसर ये कि नमाज के सिलसिले में मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करूँ जिन्हें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो ज़ाहिरी आदाब है, ज़ाहिरी सुन्नतें हैं। अब जब हम ही को लोग देखेंगे जो हम सुन्नतों के दाई हैं, हुजूर बहरुल रिज़वान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की हमें अल्हम्दुलिल्लाह निस्बतें हासिल हैं, और फिर हम बताते हैं कि हमारे हज़रत को अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों पर अमल में ऐसा मर्तबा हासिल था, लेकिन अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम किसी को कायल नहीं कर सकते हैं और किसी को सही तौर पर समझा नहीं सकते। क्योंकि लोग कहते हैं कि दरख्त की अज़मत का पता उसके फल से लगता है, उस्ताद के इल्म व फन में इदराक का पता उसके शागिर्द की सलाहियतों से लगाया जाता है, और पीर की अज़मतों का पता उसके मुरीद की तक़वा और परहेज़गारी से लगाया जाता है। लिहाजा हमें और आपको अपनी नोक
चंद आदाब मैं अर्ज कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह कभी और भी इस ताल्लुक से और हज़रात भी हमारे असातिज़ा है और बुजुर्ग उलमा है, ये सब अंदाज बयान फरमाएंगे। चंद बातें सिर्फ आपके सामने चंद मिनट में अर्ज कर दूँ। अव्वल तो ये है कि मैंने देखा, जहाँ तक मैं मुशाहदा करता हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ जो जवान है, कोई नौजवान है, इस तरह के लोगों को तलबा उलमा में काफ़ी लोग हैं, बहरहाल उस लोगों को मैं देखता हूँ कि वुज़ू के सिलसिले में बहुत ही बेएहतियात है। जबकि वुज़ू के सिलसिले में हमें कितनी एहतियात करना चाहिए, हम और आप सब जानते हैं कि वुज़ू नमाज के लिए शर्त है। अगर वुज़ू में ज़र्रा बराबर कोई कमी रही और फर्ज में कोताही हुई तो हमारी और आपकी नमाज बिल्कुल ही नहीं। और वुज़ू में मुबालगा और इसबाग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब व मरदूद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तबलुगु हिय्यतुल मुमिन हैसु यबलुगुल वज़ू। फरमाते हैं मोमिन का क़यामत के दिन या जन्नत में जो मोमिन को ज़ेवर पहनाए जाएंगे वो उसके उन आज़ा तक होंगे जहाँ तक वुज़ू करने में पानी वुज़ू का पहुँचता था, वहाँ तक उन्हें ज़ेवरों से आरास्ता किया। आप इससे अंदाज़ा करें कि वुज़ू के सिलसिले में हमें और आपको कितनी बारीक बीनी की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में जो उलमा हैं, मैं उन्हें मशवरा दूंगा, तलबा हैं, वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की फतावा रज़िया शरीफ का गहराई से मुताला करें तो अंदाज़ा होगा। मसलन चेहरा धुलना है, हम लोग चेहरा धुलते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि कनपट्टी की तरफ पानी नहीं पहुँचता। आप जानते हैं कि कनपट्टी एक कान की लौ से लेकर दूसरी कान तक ये चेहरा, अब अगर इसके दरमियान का कोई हिस्सा बाल बराबर भी सूखा रह गया तो आपका चेहरा नहीं धुला, और चेहरा नहीं धुला तो पूरा वुज़ू नहीं, और वुज़ू नहीं होगा तो बिल्कुल नमाज नहीं। ऐसे नाखूनों के सिलसिले में हमें बहुत बारीक बीनी की ज़रूरत है। ज़रा सा भी अगर नाखून कहीं सूखा रह गया, अक्सर होता है कि नाखून में कहीं हमारे खाने का मसाला लगा हुआ है, कहीं कोई पान खाता है, बीड़ी वो गुटखा खाता है, कोई तंबाकू खाता है तो चूना वगैरह लगा देता है, कट्ठा लगा देता है, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ेंगे उसमें आला हज़रत फरमाते हैं अगर इस तरह की कोई भी चीज़ ऐसी लगी रही जो जिर्मदार है और वुज़ू करने में उसे खोलता नहीं, साफ नहीं किया तो उसका वुज़ू नहीं। ये बारीकियाँ हमें, क्योंकि ये कुल्लियतुल दावा का प्रोग्राम है, हुज़ूर बैरुल ने इसे इसी मकसद से रखा था ताकि लोगों की इस्लाह की जाए, तरबियत की जाए और लोगों को सच्चा दाई और मुबल्लिग बनाए। ज़ाहिर व बातिन के आदाब हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। नमाज के ताल्लुक से हमें और आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मसलन नमाज में हमने देखा कुछ लोग बहुत जल्दी करते हैं, ख़ासतौर पर कौमे और जलसे के सिलसिले में मैंने बड़े बड़ों को देखा है जो बहुत बेएहतियाती बनते हैं, जबकि कौमा और जलसा इमाम शाफ़ई वगैरह के नज़दीक तो फ़र्ज़ है, हमारे इमाम साहब के नज़दीक वाजिब, और जबकि उलमा जानते हैं फ़र्ज़ और वाजिब में अमल के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। हुज़ूर बैरुल रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साहबा फरमाते हैं तो हुज़ूर का रुकू, कौमा, सजदा और जलसा चारों बराबर। हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कभी नमाज पढ़ रहे हैं कहीं पे जो है तो एक सजदे से मुक्तदी उठ भी नहीं पाते हैं कि इमाम साहब दूसरे सजदे में कब तक पहुँच जाए। इस बारे में हमें बहुत एहतियात की जरूरत है। कौमे में भी यही होता है, सही से खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा पूरा कह भी नहीं पाए कि रुकू के लिए वो सजदे के लिए झुक गए। ये बहुत बेहतियाती है। उलमा फरमाते हैं कम से कम 3 तस्बीह की मिक़दार कौमे और जलसे में ठहरना ये वाजिब। 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिक़दार, वो भी नहीं है सुभान अल्लाह इस तरह नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आराम से आदमी जैसे सुभान अल्लाह कहे, इस तरह से हमें कम से कम 3 तस्बीह की मिक़दार ठहरना वाजिब है। अब अगर वाजिब में कोताही होगी तो आप जानते हैं नमाज वाजिबुल आदा, जिसका दोहराना जरूरी है। कितनी भी एहतियातियाँ होती हैं हमसे, खुद हम अपनी नमाजें जो पढ़ते हैं सुन्नतें वगैरह लोग अदा करते हैं, कभी बैठे हो तो देखते हैं अजब हालत होती है, पता लगा कि हम एक मरतबा अगर तिलावत कर रहे हैं मतलब कुल अल्लाह शरीफ पढ़ रहे हैं तो हमने एक मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पूरी नहीं पढ़ पाई और कोई इंसान ऐसा है खड़े होकर पूरी गिरत करके रुकू पहुँच जाता है।
हमें हैरत होती, पता नहीं कितनी जल्दी पढ़ लेते हैं। जल्दी वही पढ़ सकता है मेरे भाइयों जो मखारिज को अदा नहीं करता। अगर तलफ़्फ़ुज़ के साथ मखारिज की अदायगी के साथ कोई तिलावत करेगा, तिलावत करेगा तो उसे देर लगेगी, इतनी जल्दी नहीं हो सकती है जितनी जल्दी बहुत से लोग कर लेंगे। जल्दी आप नमाज के लिए जल्दी कर लेते, उसके बाद क्या करते हैं? 2 मिनट में आपने नमाज अदा कर ली, उसके बाद बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। ये हम आम आदमियों की बात नहीं, हम आम मौलवियों की तरह नहीं। अगर हम और आप आम मौलवियों की तरह रहेंगे, आम लोगों की तरह रहेंगे तो हम में और उनमें फर्क ही क्या है? हम इस बात के दाई हैं, इस बात की दावत देते हैं कि साहब हम बहुत बड़े जो है नेक हैं, बहुत बड़ी हम जो है रूहानियत के तरफदार हैं, हम इतनी बड़ी बारगाह से जुड़े हुए हैं। जब हम इस बात के दाई हैं तो चाहिए कि हम अपनी को दुरुस्त रखें, एक एक अमल का अपना मुहासबा, और ये हम खुद कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि हमारी और आपकी ये कमियाँ इस वजह से नहीं कि हम जानते नहीं, आपको अच्छी तरह से मसाइल का इल्म है, लेकिन कमी ये सिर्फ इसलिए है कि हम अपने अमल का मुहासबा नहीं करते, जांच नहीं करते, हम दूसरों को देखते नहीं हैं, अपने से बड़ों को देखें, गौर करें। और जिन्होंने हुजूर बैरुल इरफान की सोहबत पाई है और फिर भी उनके अंदर बदलाव नहीं आया, तो मैं समझता हूँ उन्होंने सोहबत का सही फायदा नहीं, उन्होंने देखा नहीं कि हुजूर बैरुल इरफान किस तरह नमाज अदा फरमाते। आप सबने देखा कि जागते सोबत में रहे हुजूर बैरुल इरफान की नमाज अल्लाह अकबर। और किरत के मामले में बहुत कोताहियां हमसे संदर्भ होती। अव्वलन तो ये है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सही तजवीज़ के मुताबिक कुरान पढ़ते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए, और जो पढ़ते भी हैं उनका भी हाल ये है कि नमाज में कितनी किरत करना चाहिए, कौन सी नमाज में करना चाहिए, ये सुनन में से हैं, आदाब में से हैं। और हम सब इस ताल्लुक से, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ, हम सब इस ताल्लुक से निहायत कोताह वाक़िफ़ हुए हैं और बहुत कमियों का हमसे और आपसे सुबूर होता है। इस सिलसिले में हमें गौर करना चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नज़दीक लंबी किरत के साथ नमाज पढ़ना अफजल है, सजदे से भी अफजल। कुछ लोग कहते हैं रुकू और सजदा इतना करते हैं कि 11-11 मरतबा तस्बीह पढ़ते चले जाओ, उसका रुकू और सजदे के पूरा होता है। और किरत ऐसी होती है कि पता लगा पहले रकात में रखो और इतना देना पड़ती, दूसरे में साफ कुल्हुल्लाह शरीफ पढ़ते, इशा में पढ़ते हैं, फज्र की नमाज में चंद आयतें तिलावत कर देते हैं। कुछ का मामला ये है कि पहली रकात में तो साफ 15-20 आयतें पढ़ दी और दूसरी रकात में 2 ही आयतें पढ़ दी। ये भी निहायत कोताही हमारी और आपकी है, जबकि तमाम कुतुब फिक़ह में लिखा है कि दोनों रकातों की फर्क की दोनों रकातों की किरत बराबर होना है। ज़्यादा से ज़्यादा उलमा ने लिखा पहली रकात में थोड़ी सी किरत ज़्यादा हो जाए और दूसरी में थोड़ी सी कम हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं मतलब है कि पहली में 15 आयतें पढ़ी और दूसरी में बस 2 आयतें पढ़ी, ये कोई मुनासबत नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। हमें और आपको चाहिए इस ताल्लुक से हम बहुत गौर करें। नमाज अगर सही है, आप दिल लगा के और आदाब के साथ नमाज पढ़ के देख लें, इंशाअल्लाह आप उसके बाद जब मुराक़बे में बैठेंगे तो फैज़ान का आलम ही। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी और आपकी। और एक और चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो मैं बहुत से लोगों को आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, देखता हूँ कि नमाज के फौरन बाद इधर उधर खड़े होकर बातें करने लगते, फिर उसके बाद मुराक़बा करने के लिए आते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि वैसे तो चूँकि मदारे अक़दस की वजह से हम लोग ऊपर से मतलब मस्जिद से आते हैं या छोटी मस्जिद से आते हैं, वहाँ से यहाँ तक, तो हमारी मजबूरी है कि इतना चलना पड़ता है हमें, वरना अहादीस में जो फजीलत आई है वो उस बात पे आई है कि नमाज पढ़ के बंदा उसी जगह में ज़िक्र के लिए बैठ जाए तो अल्लाह ताला फज्र और अस्र के वक्त में जब इंसान बैठता है और अस्र से लेके मगरिब तक और फज्र से लेके इशराक तक जिक्र में गुजारता है तो अल्लाह ताला दोनों वक्तों के अलग अलग तादाद आई है, एक में 4 और एक में 2 गुलाम आज़ाद करने का अल्लाह उसको सवाब बताता। लेकिन ये जब ही होगा जब हम दुनिया की बातें ना करें। और अगर आपने नमाज पढ़ के फौरन दुनिया की बातें कर ली तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि नमाज से जो कैफियतें पैदा हुई थी वो सारी कैफियतें हम वहीं ऊपर ही ख़त्म करके चले आए, या छोटी मस्जिद से आए रास्ते में ही हमने ख़त्म कर दी, यहाँ आके अब असर नौ हमें वो कैफियतें पैदा करने की कोशिश करना पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, और इतनी देर हो जाती है कि मुराक़बे का टाइम खत्म।
اس لیے ہمیں اور آپ کو اس چیز پر بھی خاص توجہ دینا چاہیے۔ دنیا کے سارے کام ادھر ادھر کے سارے کام آپ بعد میں کر لیں اور سارے کام کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کوشش کریں کہ کوئی بھی بات آپ جملہ بھی ایک بلا ضرورت اپنی زبان سے نہ نکالیں، خاموشی کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے آپ مزار اقدس سے آ جائیں، حاضری میں مختصر فاتحہ پڑھ کے اور دل کی توجہ برابر اپنے رب کی طرف رکھتے ہوئے آپ انشاءاللہ ذکر میں بیٹھیں گے تو اس کا پھر مزہ ہی الگ۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ چند آداب میں نے جو بھی میرے ذہن میں آئے میں نے خاص کر دیے، یہ اس لیے میں نے بیان کیے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو سب کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور آخری بات یہ کہ ہمیں سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن یاد کریں۔ قرآن جب زیادہ یاد ہوگا تو ہم نماز میں لمبی قرأت بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو حافظ لوگ نہیں ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو چند صورتیں یا چند رکوع سے یاد ہو، وہ انہی رکوع پر اکتفا کرتے ہیں اور بار بار انہی رکوع کو پڑھتے رہتے ہیں، اور مجبوری ان کے سامنے یہ ہے کہ وہ ان رکوعوں کے علاوہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ یاد نہیں، مشق نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار محنت کریں، جب ہم دنیا کے میرے معاملات یاد کر لیتے ہیں، میری چیزیں یاد کر لیتے ہیں تو ہم قرآن مقدس کیوں نہ یاد؟ جبکہ آپ جانتے ہیں احادیث سے سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن حامل قرآن یہ صرف حافظ کی بات نہیں بلکہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ کے اس پہ عمل کرنے والے کے بارے میں آیا، اس سے فرمایا جائے گا اقرا برتقی، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ تیری منزل وہ ہوگی جہاں پر تیری تلاوت قرآن ختم۔ سبحان اللہ۔ قرآن یاد کرنا چاہیے، قرآن جتنا زیادہ سینے میں، حضور فرماتے ہیں ان اللہ لا يعذب قلبا مع القرآن، اللہ اس سینے کو عذاب نہیں دے گا جس میں قرآن ہے۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ قرآن کبھی توجہ کے ساتھ آپ پڑھ کے یا سوئی کے ساتھ پڑھ کے تو دیکھیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن سے کیسا فیض ملتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ جب نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو بندہ دنیا سے نکل کے آخرت میں داخل ہوتا ہے۔ فرماتے اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا، کیونکہ حضور کی معراج یہ تھی کہ وہ لامکہ میں پہنچ گئے تھے، اس عالم سے نکل گئے تھے، اور بندے مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز کی کیفیتوں سے دوچار ہوتا ہے تو وہ بھی عملی طور پر روحانی طور پر اس عالم سے نکل جاتا ہے اور دار آخرت میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب اس تعلق سے نہایت غور و فکر کریں اور اپنے اعمال کا خود محاسبہ کریں۔ کسی کے کہنے کی یا کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم ریپیٹ کریں، کتابوں کو سامنے رکھیں اور دیکھیں، غور کریں کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے، ہم کون سا عمل کس طرح ادا کرتے ہیں اور کس طرح ادا کرنا چاہیے، اور صرف ظاہری علم والوں کی کتابیں نہ دیکھیں بلکہ باطنی علم رکھنے والے شریعت اور طریقت کے جامع علماء محققین، علماء ربانیین کی آپ تصانیف پڑھیں، اور خاص طور پر سرکار امام ربانی نے جو کمالات نماز اور آداب نماز ذکر فرمائے ہیں آپ انہیں پڑھیں اور انہیں آپ اپنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال ہوگا۔ اللہ عزیز مجھے دم میں واقع دے گئی